Hey guys, myself Ahmad, and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. And from today I'm going to start a series of NCRT from Geography class 11, that is the physical environment. So if you are preparing for the UPSC or any other competitive exam, it is going to be helpful for you. So today I will be discuss the first chapter of the physical environment. So if we talk about the mainland of the India that extend from north to south, from Kashmir to Kanyakumari, it is exactly 3,214 kilometers. Whereas from east to west, from Arunachal Pradesh to Gujarat, it is exactly 2,933 kilometers. So let's talk about India's territorial limit further extends towards sea up to the 12th nautical mile. So let's understand that what is the meaning of the nautical mile. When we use the measure of the land, it is called the kilometer, and when we use the measurement of the water, it is called the nautical mile. जब हम लैंड को मेजर करते हैं तो हम इसे किलोमीटर में करते हैं, और जब हम वाटर को मेजर करते हैं तो हम इसे नॉटिकल माइल में करते हैं. आपको इतना याद रखना है. फर्स्ट, सेकेंड, a nautical mile is equal to 1.8 kilometer, means less than 2 kilometer. This is important for you to remember. So let's understand that what is the territorial limit of India in the sea. Yeah, what is the territorial limit of a country in the sea? Since when the South China Sea dispute started, as we know, dispute in the South China Sea, that there are some islands, and these islands today on ownership under dispute. There are some important islands such as Parcel Islands, Spratly Islands, Scarborough Shoal Islands, and Macclesfield Islands, and the Thomas Islands. But problem is that China is the only country that claiming ownership on all these islands. After claiming China, the UN came up with a law, that is UNCLOS. What is the UNCLOS? Let's see. United Nations Convention on the Law of the Sea. So UNCLOS came with the two concepts. First, zooming, and second, ARC creation. So let's understand that what is the zooming. As a concept of the zooming, the water in the world have been divided by the UN into the 5 zones. So let's understand what are those 5 zones. First, internal water. What is the internal water? Within the country, lakes, rivers, ponds, and streams, these are internal water of a country. First. Second, territorial water. What is the territorial water? Start from sea, 0 nautical mile to 12 nautical mile. Third, the contiguous zone. What is the contiguous zone? From 12 nautical mile to 24 nautical mile. Contiguous zone is the final frontier, a final border in the water. A ship of the foreign country does not enjoy the right to navigate in contiguous zone because it is the area of the full sovereignty. So normally we find a custom agency in the contiguous zone. They do paperwork with respect to entry of the ship. So let's understand the fourth is the exclusive economic zone. What is the exclusive economic zone? From 24 to 200 nautical mile. So the UN clause says that you can enjoy only 3 rights in exclusive economic zone. What are those 3 rights? First, right to explore the oil. आप oil को explore कर सकते हो. First. Second, right to do fishing. आप fishing कर सकते हो. And right to explore the mineral. आप mineral explore कर सकते हो. Other countries do not enjoy these 3 rights. UN clause further says that all other countries in exclusive zone can enjoy the right to navigate. What does what does it mean? It's mean such as the Pakistani ship can navigate in Indian exclusive economic zone. Similarly, Indian ships can navigate in the Pakistani exclusive economic zone. And the last but not the least, that is the high seas. What is the high seas? Above 200 nautical mile. It's okay. High seas
does not belong to the any country. Every country enjoy the right to navigate. Our southern boundary extend up to the 6 degree 45 minutes north latitude in the Bay of the Bengal. So let's understand that what is the latitude and what is the longitude, and why we have need latitudes and longitudes. Have you even noticed that when you want to visit new place, what do you do first? क्या आपने कभी नोटिस, आप जब भी कोई नई जगह घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? You enter the address of that place in the Google Map. As soon as you enter that address in the Google Map, Google gives you all the information about that place, such as जैसे कि हाउ टू रीच देयर, कि वहां कैसे पहुंचे, वेयर इट इज द लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, एंड विच आर नियरेस्ट लैंडमार्क्स. व्हाट इज द लैंडमार्क्स? Landmarks means prominent or well-known object such as any historical building, any historical place, any famous mall, any famous shops. Suppose that I am in the Patna nearby the Golghar. My best friend is coming to meet me, but he has never ever come Patna before. लेकिन इससे पहले वो कभी पटना नहीं आया. How he will reach to me? वो कैसे मुझ तक पहुंचेगा? He will just enter the location of the Golghar in the Google Map and he can get all the information and he can reach to me easily. Do you think how it's possible? क्या आप सोचते हैं कि कैसे संभव है? Because the Google Map has stored a lot of particular number for every place. And what are these numbers? These are latitudes and longitudes. So let's understand that what is the latitude and what is the longitude. These are imaginary line. ये काल्पनिक रेखाएं हैं. Imaginary line means invisible line, जिसे हम देख नहीं सकते. Through latitudes and longitudes, we can know the location of any country and also particular time of that country. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम किसी भी कंट्री का लोकेशन जान सकते हैं और उस कंट्री का पार्टिकुलर टाइम भी जान सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड. तो देखिए ये हमारा मैप है, ग्लोब का मैप है, ठीक है. ये हमारा इंटायर अर्थ है और इसके बीचों बीच हमने एक हॉरिजॉन्टली लाइन को ड्रॉ किया है और इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज इक्वेटर डू? इक्वेटर करता क्या है? इक्वेटर divides the entire earth into the two exact half. इक्वेटर क्या करता है? हमारे इंटायर अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है. इक्वेटर के ऊपर के जो पार्ट है, ये नॉर्थ का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के जो नीचे का पार्ट है जो साउथ में, हम इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. इट्स ओके, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. देखिए फिर हमने एक ग्लोब को लिया है और इसके बीचों बीच फिर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है जो वर्टिकली है, वो हॉरिजॉन्टली था और ये वर्टिकली है और इस लाइन का नाम हम रख दिया है प्राइम मेरिडियन, ठीक है. इस प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, याद रखिएगा. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है. तो व्हाट डज प्राइम मेरिडियन डू? प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स एंटायर अर्थ इनटू द टू एग्जैक्ट हाफ. प्राइम मेरिडियन भी जो है हमारे अर्थ को एग्जैक्टली टू पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है. अब देखिए जो ईस्ट का पार्ट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और जो वेस्ट का पार्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देखिए ग्लोब के इस पार्ट को हम बोलते हैं पोल, ठीक है. ठीक है, जो हमारे ग्लोब है इसके टू पोल है, ठीक है. तो नीचे का है तो साउथ पोल है और जो ऊपर है वो नॉर्थ में है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और ये साउथ में है इसलिए हम इसको बोलते हैं साउथ पोल. So let's understand once that what is the differences between both equator and the prime meridian. Equator divides the entire earth horizontally, whereas the prime meridian divides the earth vertically, but both divide the earth equally into the two exact half. इस बात को आप याद रखिएगा. So let's proceed further. Apart from these two lines, there are some more lines which have been drawn on entire earth. इस दो लाइन के अलावा भी बहुत सारे लाइन जो है हमारे ग्लोब पे, हमारे प्लैनेट पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है. सो टेकिंग इक्वेटर एज ए बेस, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है और इसको हम बेस मानते हैं, ठीक है. इक्वेटर को बेस मानते हुए इसके ऊपर हमने 90 लाइन ड्रॉ किए, 90 लाइन और इसके नीचे हमने 90 लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है. विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के पैरेलल चल रहा है एकदम, ठीक है. एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड द लैटिट्यूड्स. याद रखिएगा यही सारी जो लाइन है ये लैटिट्यूड कहलाती है, ठीक है.
तो चलिए एक चीज और याद रखिएगा कि इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल अमंग ऑल लैटिट्यूड। ठीक है, ये जो इक्वेटर है ये सभी सर्कल से लैटिट्यूड से बड़ा है, लार्ज है। क्यों? देखिए इसके ऊपर आप जैसे जैसे जाइएगा जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे वो धीरे धीरे छोटे होते चला जाएगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाइएगा लैटिट्यूड का साइज छोटा होता चला जाएगा, बिकॉज ऑफ आवर अर्थ शेप, हमारा जो अर्थ का शेप है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसलिए। ठीक है, वन मोर थिंग दैट लैटिट्यूड्स आर द फुल सर्कल। याद रखिएगा लैटिट्यूड जो है ये फुल सर्कल होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ग्लोब में कैसे फुल सर्कल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्वेटर के ऊपर हमने 90 लाइन ड्रॉ की है और इक्वेटर के नीचे हमने 90 लाइन ड्रॉ किया था। 90 प्लस 90 180 प्लस इक्वेटर 181। तो याद रखिएगा जो लैटिट्यूड्स है ये 181 है। देखिए ये जैसा कि हमने बताया कि हमने एक वर्टिकली लाइन को ड्रॉ किया जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हमने 179 लाइन को ड्रॉ की है। ठीक है, और वेस्ट में 179 लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और प्राइम मेरिडियन को जीरो बेस मान के हमने 197 लाइन इधर ड्रॉ की है और 97 लाइन इधर ड्रॉ की है। ठीक है, तो टोटल कितने लाइन हो गए? 179 179। एक ये हो गया प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन की एक और लाइन है जो अपोजिट में है 180 डिग्री पे। ठीक है, हम उसको दिखाएंगे। तो आप याद रखिएगा इसी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इट्स ओके। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हुए? 360। आप याद रखिएगा। एंड सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट लॉन्गिट्यूड्स आर द सेमी सर्कल। जैसा कि हमने आपको बताया कि इक्वेटर जो है ये फुल सर्कल है और लॉन्गिट्यूड जो है ये सेमी सर्कल है, मतलब कि हाफ सर्कल है। अभी हम बताएंगे आपको कैसे। लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट द पोल। आप याद रखिएगा जो लॉन्गिट्यूड्स है ये पोल पे जाके कन्वर्ज हो जाता है। देखिए आप यहाँ बीच में कितना गैप है, लेकिन ऊपर में जाके ये पूरा मिलता जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर अर्थ शेप, हमारा जो अर्थ का जो शेप है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट्स हैपेंस। इट्स ओके। देखिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, देखिए ये लैटिट्यूड है, सॉरी हाँ ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये फिर यहाँ से जो देखिए ये जो लाइन गया है ये लाइन यहाँ आके मिल जाता है। ठीक है, एक लाइन हो गया ये, तो सेमी सर्कल है, हाथ पूरा नहीं हुआ, ये लाइन फिर दूसरा हो गया। बट ऐसा नहीं है, लेकिन लैटिट्यूड में क्या होता है कि ये जो सर्कल है लैटिट्यूड का, ये फुल सर्कल, ये पूरा घूमेगा ऐसे करके अंदर। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। सो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक टर्म है जो मुझे समझाना है आपको। हाँ देखिए एक टर्म्स है जो जिसको हम बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, अब ग्रिड कहते हैं किसको? ग्रिड हम आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं ग्रिड कहते हैं किसको। देखिए ये जैसा कि आपको पता है कि ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब देखिए ये जिस पॉइंट पे काटती है एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रिड। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए जैसा कि हमने बताया कि हमने यहाँ पे प्राइम मेरिडियन को जीरो बेस माना। ठीक, और एक लाइन को हमने ड्रॉ किया जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। लेकिन हम जैसे ही ईस्ट से हम ऐसे जाते तो जहां 180 डिग्री पड़ता है, ठीक है, जहां 180 डिग्री पड़ता है, ये 180 डिग्री को 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड? बिकॉज व्हेन वी काउंट फ्रॉम ईस्ट, जैसे कि हम जब इसे ईस्ट से काउंट करते हैं, इसको जीरो मानते हैं प्राइम मेरिडियन को, और जब हम यहाँ ईस्ट से काउंट करते हैं, इसको ईस्ट से काउंट करते हैं, तो 180 डिग्री ये होता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बट व्हेन वी काउंट फ्रॉम वेस्ट, जब हम वेस्ट से काउंट करते हैं तो भी 180 डिग्री यहीं जाके उठता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इस 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड को हम एंटी मेरिडियन भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी कॉल इट एंटी मेरिडियन? हम इसे एंटी मेरिडियन क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड द एंटी मेरिडियन? बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। इसको हम एंटी मेरिडियन क्यों बोलते हैं? देखिए ये प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन इसके डायरेक्ट अपोजिट पे पड़ता है ये 180 डिग्री। बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी मेरिडियन। ठीक है, one more thing that 180 degree east and west longitude it is also called the international dateline। और इसी 180 degree east and west longitude को हम international dateline भी कहते हैं। Now the question is कि why it is called the international dateline? Because on the east side of this longitude we have one date, but on the west side of this longitude
वी हैव अनदर डे। लेकिन जो ईस्ट साइड में होता है इधर अलग डेट चलता है, और वेस्ट में जो होता है इधर अलग डेट चलता है। हम एग्जांपल देते हैं कि देखिए एग्जांपल इंडिया और इंग्लैंड में जो टाइम का डिफरेंसेस होता है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड में जो टाइम का डिफरेंस है वो 5 घंटा 30 मिनट्स डिफरेंसेस है। मीन्स इंग्लैंड इंडिया से 5 आवर 30 मिनट्स पीछे चल रहा है। यदि इंडिया में 12 बज के 10 मिनट हो रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि इंग्लैंड में 7 बज के 40 मिनट हो रहा है। अब देखिए जैसे ही 12 बज के 1 मिनट होगा तो डेट चेंज हो जाएगा इंडिया का, बट इंग्लैंड में नहीं हुआ है क्योंकि इंग्लैंड में अभी 7 बज के 40 मिनट पीएम ही हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट का मेंशन करना चाहेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न साइड, ठीक है, गुजरात का जो लास्ट कॉर्नर है, देयर इज अ विलेज दैट इज द नेम ऑफ द बुहार मोती, इट्स ओके, और वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात में पड़ता है। इफ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न साइड, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न साइड, देयर इज अ विलेज दैट इज द किबिथु विलेज, ठीक है, ये लास्ट कॉर्नर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न साइड, in the northern side there is Siachen Glacier. As we know that some part of the Siachen Glacier in the west has been occupied by the Pakistan, and some part of the Siachen in the east has been occupied by the China. So Siachen Glacier का जो extreme point है उसको हम बोलते हैं इंदिरा फॉल। It's okay, you will have to remember this. So let's proceed further. If we talk about the साउदर्न पार्ट, अगर साउदर्न पार्ट की बात करें तो साउथ में जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, एंड दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ये एक्सट्रीम पॉइंट है। बट इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, सबसे एक्सट्रीम में ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ठीक है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट है जिसका लैटिट्यूड होता है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। यू विल हैव टू रिमेंबर जो एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा साउथ में वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है, और इसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसा कि हमने कहा कि देखिए हर एक लॉन्गिट्यूड, एक लैंगिट्यूड से दूसरे लैंगिट्यूड में जो डिफरेंसेस आता है वो 4 मिनट्स का आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन। देखिए ये हमारा ग्लोब है और मान लीजिए कि यहाँ पे सनरेज पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे सनरेज आ रही है, इस लॉन्गिट्यूड पे सनरेज आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो लॉन्गिट्यूड है, इसके बाद वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसमें सनरेज मतलब आएगा 4 मिनट के बाद। आप बोलिएगा कैसे? देखिए एज वी नो दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, आपको जैसे पता है कि अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमता है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सनरेज पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये घूम के ये लैटिट्यूड भी, इसके बाद वाला जो लैटिट्यूड, ये भी लैटिट्यूड यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये जब घूमेगा, जब घूम के यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको ये यहाँ से यहाँ तक घूमने में 4 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि हमने बताया था कि देखिए इंडिया में और इंग्लैंड में जो टाइम जो डिफरेंसेस है वो 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है। मान लेते हैं कि इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड यहाँ पे है, इंग्लैंड यहाँ पे, ठीक है, तो इंडिया में मॉर्निंग पहले हो जाती है और 5.5 घंटे के बाद इंग्लैंड में मॉर्निंग होती है, इसलिए हमें डिफरेंस, क्यों? क्योंकि अर्थ मूव करता है, अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो इंडिया और इंग्लैंड में जो लैटिट्यूड का जो डिफरेंसेस है वो 82 डिग्री हाफ का है, ठीक है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे हर एक लॉन्गिट्यूड में जो डिफरेंसेस होता है वो 4 मिनट्स का होता है, ठीक है, मतलब कि इस लॉन्गिट्यूड इसके बाद ये इस जिस पोजीशन में ये लॉन्गिट्यूड है, अर्थ जब रोटेट करेगा, जब अर्थ घूमेगा तो इस लॉन्गिट्यूड को यहाँ पहुंचने में 4 मिनट लगता है। अब मान लीजिए कि 82 प्लस हाफ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है इंग्लैंड और इंडिया में, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 5.5 घंटा लग जाता है, इसलिए 5.5 घंटा का डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड में। देखिए अगर हम इंडिया में ईस्ट से वेस्ट की बात करें, देखिए इंडिया में जो वेस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में ये इंडिया का जो डिफरेंसेस है इन द टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड, देयर इज अ डिफरेंसेस ऑफ द 30 लॉन्गिट्यूड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया के अंदर कितने लॉन्गिट्यूड है, 30 लॉन्गिट्यूड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंसेस कितने आ जाएंगे, एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंसेस आता है, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 मिनट्स आता है, तो इसका मतलब कि 2 आवर्स का डिफरेंसेस है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट में 2 घंटे का गैप आ रहा है, ठीक है, कहाँ? इंडिया में ईस्ट से वेस्ट में 2
2 आवर्स का डिफरेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंसेस है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, लेकिन देखिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया में जो ईस्टर्न स्टेट है यहाँ 2 घंटे पहले मॉर्निंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न स्टेट है यहाँ 2 घंटे के बाद मॉर्निंग होती है। तो अब इंडिया के सामने, इंडियन गवर्नमेंट के सामने अब ये समस्या थी कि क्या किया जाए, इंडिया में 2 टाइम जोन को बनाया जाए। बट अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूड में जो 30 लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंसेस है ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट आप रसिया में देखेंगे तो 11 टाइम जोन है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर इंडिया में 2 टाइम जोन बनता, ईस्टर्न के लिए अलग और वेस्टर्न के लिए अलग, तो किस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती। तो देख लीजिए कि सपोज दैट यू आर लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश और आपका एक दोस्त है जो गुजरात में रहता है, ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्त का बर्थडे आता है और आप विश करने के लिए कॉल करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू आपके यहाँ तो 12 बज गए हैं, लेकिन गुजरात में अभी 10 ही बजा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, आपको 2 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर आप उसको विश करते हैं, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट सेकंड, मान लीजिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं, आप हमेशा दिल्ली आना जाना आप करते हैं, तो भी आपको टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ता है, ठीक है। बट फाइनली इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक बीच का रास्ता अपनाएंगे और हमने 60, जैसे कि देखिए अब इंडिया ने क्या किया कि ये बीच का रास्ता इंडिया ने अपनाया। इंडिया ने क्या किया कि देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंसेस है वो 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस है। इंडिया ने क्या किया, इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किया, इसके बीचों बीच एक लाइन को ड्रॉ किया जो कि यहाँ से 50 लॉन्गिट्यूड में पड़ता हो, ठीक है, और यहाँ से भी, मतलब ये दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इसको इसके बीच बीच एक लाइन को ड्रॉ किया और इस लाइन को हम कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट इट्स लॉन्गिट्यूड। इस 82 डिग्री 30 मिनट इट्स लॉन्गिट्यूड को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन वर्ल्ड का सिंगल टाइम जोन है ना, जिसके थ्रू हर एक कंट्री का टाइम डिसाइड होता है, वैसे ही ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स इट्स, है ना, विच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिटरमिन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। ये इंडिया का सिंगल टाइम जोन है जिसके माध्यम से पूरे इंडिया का टाइम डिफाइन होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने बीचों बीच एक लाइन को ड्रॉ किया और हम टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। सपोज दैट एग्जांपल कि अभी अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 AM हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सन रेज के हिसाब से यहाँ 6 AM हो रहे हैं, लेकिन गुजरात में कितना है, देखिए जितना सन रेज अभी अरुणाचल प्रदेश में है उतना सन रेज गुजरात में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में अभी 6 बज रहे हैं, 6 AM हो रहे हैं और गुजरात में अभी 4 AM हो रहे हैं, लेकिन जो बीच का जो हमने लाइन ढूंढा है, ठीक है, जो बीच में जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, लेकिन यहाँ पे 5 बज रहा है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक में 15 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस है, ठीक है, इसलिए यहाँ 5 बज रहे हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं और यहाँ जो गुजरात में 4 बज रहे हैं। तो हमने अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा कि देखिए ठीक है, आपके यहाँ इन द टर्म्स ऑफ द सनराइज के हिसाब से आपके यहाँ 6 बजना चाहिए, लेकिन आप अपना घड़ी सेट करेंगे 5 AM करके। कितना करेंगे? 5 AM। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश को हमने 1 घंटा बैक कर दिया। और हमने गुजरात को क्या कहा? हमने गुजरात को कहा ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द सनराइज के हिसाब से आपके यहाँ 4 बजना चाहिए, ठीक है, आप जो अपना घड़ी सेट करोगे वो 5 AM करोगे। मतलब गुजरात को हमने 1 घंटा आगे कर दिया, अरुणाचल प्रदेश को 1 घंटा पीछे कर दिया। तो यहाँ भी 5 बज गए, यहाँ भी 5 बज गए, और जो बीच में जितने भी स्टेट आते हैं यहाँ भी 5 बज गए। तो पूरा इंडिया का जो टाइम है वो एक हो गया पूरे ऑल इंडिया में। अगर हम इस लाइन की बात करें, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जिसको हमने माना है, जिसको हम इंडियन मेरिडियन भी कहते हैं, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, जो इलाहाबाद के नजदीक में है, यहीं से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को दिया गया। सो वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट कि ये जो लाइन है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये किस किस स्टेट से होके गुजरती है। देखिए ये जो लाइन है 5 स्टेट से होके गुजरती है। फर्स्ट यूपी, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा एंड फाइनल इज द आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा इस चीज को। वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होगी और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन हो गया। ये दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को, ठीक है, एट द
बैकुंठपुर डिवीजन इन द कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। बैकुंठपुर एक डिवीजन है जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। इंडिया हैज द टोटल एरिया ऑफ 3.28 billion. What it's mean? It's mean that India has total area of 32 lakh 87,263 square kilometer. That the share of the land that we have compared to the world is to 2.4%. जो हमारे पास जो land है compared to the world वो 2.4% है। That gives 7th position in the world. फर्स्ट में कौन आता है? फर्स्ट में रसिया, सेकेंड में कनाडा, थर्ड में यूएस, चाइना फोर्थ एंड ब्राजील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ एंड इंडिया itself is in seventh position. India is the land of great physical diversity. What exactly means the physical diversity? Such as we have lofty mountains. नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं. We have large rivers like गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी. And we have huge green forest in northeast and south India. We have vast sandy desert in the northwest like Rajasthan, Punjab, Gujarat. India is bounded by the Himalaya in the north. India जो है नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है and Hindu Kush and Suleiman range in the northwest और northwest में Hindu Kush and Suleiman range से घिरा हुआ है. So let's talk about Hindu Kush. So you can see that यहाँ पे जो Hindu Kush माउंटेन रेंज से आप देख सकते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल अफगानिस्तान टू नॉर्थ पाकिस्तान. ये सेंट्रल अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान तक फैला हुआ है. ठीक है. And then we have the Suleiman range. Suleiman range is nothing but extension of the Hindu Kush माउंटेन रेंज. याद रखिएगा ये जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है इसी का एक्सटेंशन है जो साउथ में है. ठीक है. ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट हिंदू कुश. हिंदू कुश इज एन 800 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज. हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो जैसा कि हमने बताया कि फ्रॉम सेंट्रल अफगानिस्तान टू नॉर्थ पाकिस्तान तक फैली हुई है. त्रिचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन. इट इज about 7,690 meters. And as I told that Suleiman range, it is the extension of the Hindu Kush mountain range in the south. So let's proceed further. एक पूर्वांचल रेंज के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में मेंशन किया गया. So let's understand that is पूर्वांचल रेंज. पूर्वांचल रेंज is the eastern extension of the Himalaya, lying in the easternmost part of the India. देखिए जो पूर्वांचल रेंज है ये कुछ भी नहीं है. ये जो हिमालय है इसी का एक्सटेंशन पार्ट है. लेकिन यहाँ पे जाके क्या होता है, ये जो हिमालय है यहाँ पे जाके मुड़ जाता है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होके गुजरती है. एक्चुअली ये है ईस्ट में, तो ईस्ट को हम पूर्व कहते हैं, इसलिए हम इसको पूर्वांचल रेंज कहते हैं. आई होप योर कांसेप्ट इज क्लियर. Because of all these physical diversity, it forms geographical entity. ये सभी जो physical diversities है ना, ये एक physical identity देता है, एक पहचान देता है, which is known as the Indian subcontinent. So let's know that how many countries are the part of the Indian subcontinent. There are 5 countries like Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and India itself. So you will have to remember this. What are these physical diversity? तो एक बार मैं और समझाना चाहता हूँ कि जो फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात चल रही है, क्या है फिजिकल डाइवर्सिटी. हिमालयास जैसे आप देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे, है ना. इंडिया के नॉर्थ में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन द फॉर्म ऑफ द हिमालयास. और नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सुलेमान रेंज है ना, हिंदू कुश माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेंगे. और नॉर्थ वेस्ट में सैंडी डिजर्ट एरिया आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात. बड़े बड़े ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में. और साउथ इंडिया में लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन इन द साउथ. आप साउथ में देखिए कि इंडियन ओशियन कितना दूर तक फैला हुआ है. दीज आर द फिजिकल डाइवर्सिटी. सो लेट्स टॉक अबाउट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. तो चलिए हम अब कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं. इंडिया इज अ पेनिनसुला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया इज द पेनिनसुला. what its mean India is surrounded by the water from the 3 side. पेनिनसुला का मतलब होता है कि इंडिया जो है ये 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है. एज एग्जांपल अरेबियन सी टू द वेस्ट,
इंडियन ओशियन टू द साउथ, बे ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट। मतलब कि वेस्ट में हम अरबियन सी से घिरे हुए हैं, साउथ में इंडियन ओशियन से घिरे हुए हैं और ईस्ट में बे ऑफ द बंगाल से घिरे हुए हैं। सो सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज द वाटर बॉडी। देखिए ये जो वाटर बॉडी है या वाटर पार्ट है, ये वाटर पार्ट है। डिस्टेंस ऑफ कोस्ट लाइन इट इज एग्जैक्टली 6100 किलोमीटर। देखिए ये जो हमारा कोस्ट लाइन है ये एग्जैक्टली कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। एंड 7517 किलोमीटर कोस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया प्लस आइलैंड्स ग्रुप। लेकिन अगर हम आइलैंड ग्रुप्स को जोड़ दें तो ये हो जाता है 7517 किलोमीटर। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, इन द बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलते हैं, एंड द लक्षद्वीप इन द अरबियन सी। अगर इस सब को हम जोड़ दें तो इंडिया का कोस्ट लाइन हो जाता है 7517 किलोमीटर। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिमालय। तो चलिए हम हिमालय के बारे में बात करते हैं। दिस इज द फिजिकल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड द चाइना। देयर आर द सम mountain passes which has been mentioned in this chapter, like the Khyber, the Bolan, Shipkilas, Nathula, and the Bondila. So let's talk about the Khyber. Khyber, it is a mountain pass in Khyber Pakhtunkhwa province of the Pakistan, northwest. ये जो खैबर पासेस है ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा रेड इसको मार्क कर रखा है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द खैबर ऑलमोस्ट। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट द बोलन। इट इज द साउदर्न काउंटर पार्ट ऑफ द खैबर। ये जो बोलन है ये कुछ नहीं है, ये साउदर्न पार्ट है, इसका खैबर का ही साउदर्न पार्ट है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। So let's talk about the Shipkila. Shipkila, it is a mountain pass that connects Kinnaur district of the Himachal Pradesh to Tibetan Autonomous Region in China. And let's talk about the Nathula. Nathula is a mountain pass in the Himalayas in the East Sikkim district that is a great strategic, economic and cultural significance in India. It connects Sikkim with the Chumbi Valley that is located in the Tibet that is a part of the China. So let's talk about the Bondila. Bondila is a pass. It connects Arunachal Pradesh with the Lhasa. Lhasa is the capital city of the Tibet. It is located in east of the Bhutan. Some important point. India is located as the south central of Asia. We are not the part of the Southeast Asia, rather we are the part of the Central Asia. याद रखिएगा जो इंडिया जो है ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ना कि साउथ ईस्ट एशिया का। Let's talk about our neighbors. We have Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and China. Sri Lanka and Maldives are two island countries located in Indian Ocean. Sri Lanka is separated from India by the Gulf of the Mannar and the Palk Strait. So let's know that what is the Gulf. Gulf is a part of the sea that is almost surrounded by the land. A Gulf has a narrow mouth. Gulf जो होता है ये almost land से surrounded होता है, ठीक है। This is the Gulf of the Mexico, ठीक है। और इसका जो माउथ होता है बहुत ही ज्यादा नैरो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। So remember जो कोई भी गल्फ होता है वो almost land से surrounded होता है। So let's talk about a state. A state is a narrow passage of water connecting two large bodies of the water. As example, Palk State. Palk State is a state between Tamil Nadu state of India and the Mannar district of Sri Lanka. It connects the Bay of the Bengal in northeast and the Gulf of the Mannar in southeast. याद रखिएगा जो स्टेट होता है ये दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, जैसे कि बे ऑफ द बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करता है, बट इट सेपरेट टू लैंड मास। लेकिन ये लैंड मास को सेपरेट भी करता है, जैसे कि इंडिया को यहाँ पे श्रीलंका से सेपरेट कर रखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।